Okay, so let's start with the remaining portion of transient response from chapter 4 from normalized. We have previously discussed chapter the first order transient response in the today's lecture. We will discuss about the transient response of second order systems, as we know that basically the second order system are those systems in which the denominator polynomial has the highest power of maximum 2. So as you can see on the screen, we have several types of second order systems. In the first type here of in this system, we are seeing that in the denominator polynomial we have s square plus 9 s plus 9. If we calculate it by using the normal quadratic formula, we get two separate roots. So here the roots are the negative, real, and distinct. So what we get in response is this equation. And in the next case, we have s square plus 2s plus 9, and here we note that get that the poles are real and imaginary. They have some real part as shown in this figure, minus 1 some real part and some imaginary part also, that is j8. So we get an underdamped response like this. And in the next case we have an undamped system. We have mentioned here that in an undamped system, we have the denominator polynomial as s square plus 9, and as we have the roots that do not contain any negative real part. So the roots are only imaginary with j3 value, so the response will be undamped, or we call it as an the oscillatory response, because there is no damping part in it and no negative real part that will damp this response. And then lastly we have critically damped. We have already discussed these type of responses in network analysis course, our prerequisite course. So the denominator polynomial has s square plus 6 s plus 9, and the roots came out to be minus 3 and minus 3, that is real and negative and repeated roots. So we get a response like this, and we call this response as a critically damped response. So from here we get four type of responses based on the type of roots we get from them. These are the first one was overdamped response, the second one was underdamped response, the third one undamped, and we have critically damped response. So one thing we get it from this thing, that if we have a pole like minus 2 plus minus 3j, say this the exponential decay is because of this minus 2 part, this real negative real part, minus 2 part. uh, the exponential decay will be this decay will be more sharper if we have this the value of this will get minus 5, so we get a more sharper response here. And this the exponential part is because this the oscillatory part is because of these complex pair. Okay, so this is a skill assessment exercise from the normalized books. Let rehearse these. What will be the step responses of these transfer functions given, and or probably these four these four will be of the previous four types we have discussed. Okay, so now we have so okay, so in the next case, where we have summed up in this figure. As you can see that we have four type of responses here, and undamped response, that will be an oscillatory response. This one is the underdamped response. Underdamped response contains some oscillations, and this thing will is this one is a critically damped response, central one. And this the more lethargic system, this the lower line is over damped response. So over damped response are generally due to the real distinct and negative roots. Critically damped is due to repeated roots, and underdamped roots must contain some real part and some imaginary part, and undamped has no real part, zero real part.
Okay, so let's generalize these things, and in this generalization, I will explain this thing as suppose this we have a general second order equation, and this transfer function look like this omega n square over s square plus 2 zeta omega n. So let's define that what is this omega n and what is this zeta. So basically omega n is a natural frequency and zeta is the damping ratio. What we are doing here is we are explaining some yeah, we are generalizing basically the second order equation. So let's simplify it. But we actually are doing it that हम जो हमारे पास नॉर्मल ट्रांसफर फंक्शन था जो कि कुछ यहाँ पर शो हुआ है, इस नॉर्मल ट्रांसफर फंक्शन के अंदर को हमने सिंपली जनरलाइज कर लिया जीटा और ओमेगा एन के अंदर हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं. सो अगर आप एक नॉर्मल इक्वेशन के अंदर से इसको कंपेयर करें तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अगर मैं इसको मैप करूँ ए स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, सो हमारे पास ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू क्या निकलती है वो हमने यहाँ से निकाली कि ओमेगा एन विल बी 6 एंड जीटा एन विल बी 0.35. सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से करूँ तो मेरे पास दो रूट्स की जो वैल्यू आती है वो ये आती है. ठीक है, सो मेरा ख्याल है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी. उसको हम करते हैं कि हमारे पास अब रूट्स की वैल्यू क्या बनेगी. ओके, सो यहाँ पर हम अपनी याद दहानी के लिए मेंशन कर लें दैट दिस इज 2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा. ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पर हमने पीछे S1 और S2 जो रूट्स निकाले थे उसमें हमने डिफाइन किया था कि जो हमारे पास रियल पार्ट होगा दैट रियल पार्ट विल बी माइनस जीटा ओमेगा एन. सो यहाँ पर हम रियल पार्ट को सपोज करेंगे कि वो माइनस जीटा ओमेगा एन है. यहाँ पर जैसे आप इस फिगर के अंदर देख रहे हैं वैसे ही मेंशन किया हुआ है. एंड द इमेजिनरी पार्ट विल बी जे ओमेगा एन. सो ये वही हमने जे ओमेगा एन का के पार्ट को मेंशन किया हुआ है. सो जब आपके पास ये रियल पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा तो आपके पास एक अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स आएगा जो कि कुछ इस तरह से होगा. उसके बाद अगर आपके पास रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट्स दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये जे ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर जो कि हमने पीछे कैलकुलेट किया है अभी S1 और S2 को, ये एग्जिस्ट करा होगा तो एक अंडर डैम्प रिस्पॉन्स बनेगा. एंड अगर आपके पास कम्प्लेक्स पोल्स ये वाला पोर्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और ये रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि रियल पार्ट वाले हैं तो दिस विल बी क्रिटिकली डैम्प्ड. और अगर ये डिस्टिंक्ट होंगे तो आपके पास रिस्पॉन्स ओवर डैम्प्ड आएगा. हम इसको प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं लेकिन अब हम इसको जीटा और ओमेगा एन की टर्म्स में डिस्कस करें. ओके, सो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है. एग्जांपल 4.4 है बुक की, इसको आप स्टडी कर लें. अच्छा जी, यहाँ पर हमने नेक्स्ट डिफाइन बेसिकली ये किया है कि जीटा की वैल्यू जो कि आपके पास डैम्पिंग रेशियो है, जीटा डैम्पिंग रेशियो. सो जीटा की वैल्यू वेरी करने से हमारे पास सिस्टम के रिस्पॉन्स पे क्या फर्क पड़ता है. सो जीटा की वैल्यू हमारे पास वेरी करेगी बिटवीन 0 to 1. ठीक है, सो अगर तो जीटा की वैल्यू 0 है दैट मींस रिस्पांस अनडैम्प्ड होगा. ठीक है, सो हम अनडैम्प्ड रिस्पांस को कंसीडर नहीं कर रहे, हम चूंकि अंडरडैम्प्ड रिस्पांसेस ले रहे हैं तो हम जीटा की वैल्यू को एज मिनिमम एज 0.1 लेते हैं. जैसे यहाँ पर आप बिल्कुल स्टार्ट पे देख रहे हैं कि 0.1 ली हुई है वैल्यू. सो अगर 0.1 होगा तो आप अगर यहाँ पर नोटिस करें ऑसिलेशंस अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जा रही हैं. जैसे जैसे आप जीटा की वैल्यू को क्लोजर टू 1 लेके जा रहे हैं, इस डायरेक्शन मूव करते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो अप्रोच कर रहा है क्रिटिकली डैम्प्ड को. So we know that from here that when zeta is equal to 1, the response is critically damped, and as we get it greater than 1, जैसे ही वो greater than 1 होता है तो आपके पास response over damped को approach करने की कोशिश करेगा. So ये आपके पास बुक में response दिया हुआ है, ये उसको डिस्कस किया हुआ है. So next हम यहाँ पर रिमेनिंग जो अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स की स्पेसिफिकेशंस हैं हम उनको डिस्कस करना चाहते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो इसके अंदर हम कुछ टाइम रिस्पॉन्स की स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस कर रहे हैं. आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि ये एक है राइज टाइम, एक है पीक टाइम और एक है सेटलिंग टाइम. सो मैं अगर शॉर्टली बात करूं तो मैं राइज टाइम को पहले भी फर्स्ट ऑर्डर में बता चुकी हूँ. आपकी फाइनल वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखें गौर से तो फाइनल वैल्यू आपकी क्या है, ये है आपकी फाइनल वैल्यू. फाइनल वैल्यूज 10% ऑफ द फाइनल वैल्यू से 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू यहाँ तक का जो टाइम होता है, इस टाइम को हम राइज टाइम कहते हैं.
सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जितनी देर के अंदर वो अपनी 10% वैल्यू से स्टार्ट करके 90% वैल्यू तक पहुंचा है, तो ये टाइम उसने राइज टाइम डिक्लेयर किया। ओके, सो पीक टाइम कौन सा टाइम होगा? पीक टाइम वो टाइम है जब वो अपनी मैक्सिमम पीक तक पहुंचा है। अंडर डैम्प रिस्पॉन्स के अंदर हमेशा वो ओवरशूट करेगा अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू से, सो इसलिए पीक इसमें एग्जिस्ट कर रही होगी। सो ये वाला जो टाइम है ये उसकी पीक है। सो पीक के ऊपर जिस टाइम वो पहुंचेगा दैट विल बी इट्स पीक टाइम। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास सेटलिंग टाइम क्या होगा। ये भी मैंने फर्स्ट ऑर्डर में आपको एक्सप्लेन किया था कि आपके पास अच्छा, सेटलिंग टाइम के बारे में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि सेटलिंग टाइम हम दो तरह से लेते हैं, एक हम 2% लेते हैं और एक हम 5% लेते हैं। सो यहाँ पर 2% डिस्कस किया हुआ है। 2% का मतलब ये है कि अगर उसकी पीक वैल्यू 1 है, फाइनल वैल्यू 1 है, यानी वो स्टेडी स्टेट पे यहाँ 1 पे जाके अचीव करता है, तो उसका 2% टॉलरेंस का मतलब क्या होगा? 1.02 और 0.98। तो हमने इसके दो बैंड्स बना लिए। ये वाला जो आप एरो देख रहे हैं, इन तीन के दरमियान जब तक वो लाया कर रहा होगा, जब वो जैसे ही एंटर होगा वो टाइम उसका सेटलिंग टाइम कहलाएगा। ये वाला टाइम आपके पास सेटलिंग टाइम होगा। एंड फाइनल थिंग इज पीक ओवरशूट, जिसको हम आगे फार्मूले में देखेंगे। वो आपकी जो सी फाइनल वैल्यू लिखी हुई है, इस वैल्यू से लेके यहाँ तक ऊपर मैक्सिमम पीक तक जो वैल्यू होती है उसको हम पीक ओवरशूट कहते हैं। ठीक है, सो इसके हम आगे ये प्रूफ्स कुछ दिए हुए हैं, इन प्रूफ्स को डिस्कस एक दफा कर लेते हैं। यहाँ पर उसने आपको बेसिकली जो पीक टाइम निकाला हुआ है, वो पीक टाइम चूंकि मैंने आपको बताया था कि पहले ही आपके पास ये जब जहां वो मैक्सिमम पीक तक गया होगा, उस पीक को उसने पीक टाइम कहा हुआ है। सो पीक हम कभी भी ऐसे निकालते हैं, पीक वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर आपका डेरिवेटिव जीरो हो रहा होता है। सो उसने बेसिकली यहाँ पर उसके डेरिवेटिव को जीरो करके ये पीक वैल्यू को कैलकुलेट किया। सो दिस इज योर असाइनमेंट कि आपने इन सबको इवेलुएट करना ही आपकी बुक में हुआ हुआ है। उसके बाद आपके पास ये मैक्सिमम, मैंने ओवरशूट आपको बताया था कि अगर उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू ये आ रही है, ठीक है, और वो मैक्सिमम यहाँ तक ओवरशूट करती है पीक, लेटर ऑन वो ऐसे करके स्टेबल होती है, तो आपके पास जो ओवरशूट वैल्यू होगी वो यहाँ से पीक से लेके ये वाली ओवरशूट होगी। दिस विल बी, और हम जनरली इसको परसेंटेज में लेते हैं क्योंकि ये बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। सो हम परसेंटेज का मतलब ये कि हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज द फार्मूला फॉर परसेंटेज ओवरशूट। ठीक है जी। उसके बाद हम सेटलिंग टाइम को देख लेते हैं। सेटलिंग टाइम मैंने आपको बताया कि अगर 2% टॉलरेंस होगी तो आपके पास सेटलिंग टाइम की वैल्यू ये आएगी। 5% के ऊपर ये डिफर कर सकती है। ओके जी। सो उसके बाद उसने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि आपके पास एक 4.6 एग्जांपल है जिसके अंदर उसने डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है और आपको ओमेगा एन और उसकी वैल्यूज दी हुई है, वहां से आपने पीक टाइम, परसेंटेज ओवरशूट और सेटलिंग टाइम को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर एक और टर्म डिफाइन हुई है, दैट इज ओमेगा डी। सो ओमेगा डी जो है ये डैम्प फ्रीक्वेंसी है। डैम्प फ्रीक्वेंसी को हम कैसे निकालते हैं? ये आपके पास उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डैम्पिंग रेशियो की एक कांस्टेंट सी, ये बुक में आपके पास दिया हुआ है, वहां से इसको एक दफा देख लीजिएगा या मुझसे डिस्कशन सेशन में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, सो ये आपके पास उसने एक ग्राफ बनाया हुआ है कि जैसे जैसे आप डैम्पिंग रेशियो इंक्रीज कर रहे होते हैं वैसे वैसे आपके पास परसेंटेज ओवरशूट कम होता जा रहा होता है। ये नेचुरल है। मैंने पीछे आपको एक और ग्राफ दिखाया था जिसमें आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि अगर आप डैम्पिंग रेशियो 0.1 लेते हैं तो आपके पास ओवरशूट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप डैम्पिंग रेशियो पर हाथ बढ़ाते जाते हैं वो क्रिटिकली डैम्प की तरफ जाता है। सो ये वाला ग्राफ वही कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद ये नॉर्मलाइज्ड राइज टाइम उसने उसको कंपेयर किया है। ये एक एग्जांपल है बुक के अंदर, ये मैं आपको डिस्कशन में इसको डिस्कस करूंगी। ठीक है जी। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर, और बाकी हम इसका रिमेनिंग पार्ट जो है उसको डिस्कशन सेक्शन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी।